Good morning, students. In the previous class, I mentioned about the geography of Mesopotamia and significance of the two rivers, which that plays which play the very important role in the making the this Mesopotamian civilization played the very important role, and now the lifelines of this is also the lifeline of for the had been, and still it is the lifeline for the people of the Mesopotamia or the Iraq, present day Iraq. Now students, in that we have now thrown the light on the entire geographical setup of Mesopotamia, and it was the just surrounded how Mesopotamia is surrounded by the Caspian Sea in the north east, and here the in the west there was a in the west side we can see the north in the north it's the Black Sea northwest side, and in the west it is the how this is the surrounded by the Arabian deserts, and then further west it is now surrounded we find the great Mediterranean Sea, and in the south the two rivers now falls in the Persian Gulf, and moreover it's a steppes or it's a river system now provides the irrigation and as well as communications, water communication, water communications, and now uh, uh, its geographical system now provides a lot for the Mesopotamian peoples. We have studied students. This city, the first cities in the Bronze Age civilization emerged in Mesopotamia, and Mesopotamia is valued and credited with this, and the and particularly the temple city now developed there. Understand? Or like the Assyrian civilization, Sumer civilization, and Babylon, like there's such kind of the and Uruk, Mari, and Uruk and Mari, this kind of the prominent cities now emerge in the Mesopotamia. Students, further, the Mesopotamia is this civilization is recognized, and this civilization is known for the its writing system. The first of all in Trojan civilization, Mesopotamia is credited for that. Mesopotamian civilization is credited for that. And this writing system, we know that the writing system of the any civilization is the extreme advancement of the culture. It is the extreme skill of the human beings, which comes and which is the falls upon the human beings and comes to the human beings the very skilled writing. The writing skills if the human beings gets, that is the extremity of the civilization, and it is the expression of the highest uh, zenith, the highest point of the cultural development. It is supposed that. Now, moreover, we have to see. First of all, we have to see that the development of writings is the one of the intellectual achievements of the human society. Intellectual, ये के intellectual achievements हैं जैसे मैंने कहा, and moreover, writing. What is the writing? First of all, the writing is the way of the encoding the information in a system of symbolic. इनकोडिंग द इंफॉर्मेशन, राइटिंग क्या है कि इंफॉर्मेशन को इनकोडिंग करने का एक वे है. दिस इज द एंड मोर इट हैज अ सेट ऑफ विजिबली रिकॉग्नाइजेबल साइन. Now the writing has the visibly recognizable sign and signs, and even every every language has a set of visibly recognizable signs standing for a coherent pattern. That is the standing for a coherent patterns
now and of the sounds that that holds the meaning in a particular language. और ये क्या करता है कि एक कोहेरेंट मैनर में जो पैटर्न्स ऑफ कोहेरेंट मैनर्स में एक विजुअल रिकॉग्नाइबल जो साइन होते हैं वो क्या करते हैं, ये दैट साउंड्स द होल्ड्स ए मीनिंग, वो एक मीनिंग कंपोज करते हैं, मीनिंग फॉर्म करते हैं, एंड पर्टिकुलरली इन द एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में वो मीनिंग कंपोज करते हैं। आफ्टर दैट दस इन एवरी लैंग्वेज सर्टेन स्पोकन साउंड्स होते हैं एंड कन्वे सर्टेन मीनिंग। हर भाषा में, चाहे कोई भी भाषा हो वर्ल्ड का, दुनिया में कोई भी भाषा है नहीं, लैंग्वेज इज स्पोकन, तो हर भाषा की अपनी उसका एक स्पोकन साउंड होता है और दैट कन्वे द सर्टेन मीनिंग, वो अपना एक कैरी करता है एक मीनिंग। एंड अगर हम विच इज द नोन एज द वर्बल, इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड नाउ एंड देन आफ्टर इफ वी दस द स्पीक द वी स्पोकन साउंड, अगर ये साउंड्स है स्पोकन साउंड इज नाउ आर रिप्रेजेंटेड इन विजिबली साइन बाई बाई राइटिंग और द स्क्रिप्ट। और इसको क्या करता है विजिबली, इट इज द रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस ऑफ राइटिंग, साइन ऑफ द राइटिंग, राइटिंग के साइन में इसको विजुअली रिप्रेजेंटेशन इसका किया जाता है, जिसको हम स्क्रिप्ट कहते हैं। दिस इज द नोन एज द स्क्रिप्ट। एंड फर्दर द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड मेसोपोटामियन टैबलेट से पहले आप जानते हैं कि मेसोपोटामियंस में कोई देयर वाज नो पेपर देयर, नो पेपर्स नहीं थे, तो अर्लीस्ट जो राइटिंग्स मिलते हैं मेसोपोटामिया में दैट वो टैबलेट्स पे मिलते हैं, क्ले टैबलेट्स पर दिस राइटिंग इज फाउंड। और इसका लगभग सपोज ऑलमोस्ट इट इज द सपोर्ट एट 3200 BC before Christ, and its height was 3.5 centimeters, its had the height, and the further around the ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 the lists of the oxen, fish, bread and loaves have been the discovered from the Mesopotamia। लगभग 5000 इस तरह के लिस्ट पाए गए जिसमें कि जिस पर मेंशन है या डिपिक्टेड है या साइन है ब्रेड के, फिश के, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट थिंग्स से कि उस पर साइन है। एंड मोर ओवर और द इतिहासकारों का ये मानना है, इतिहासकार इसको मानते हैं कि लिस्ट वुड हैव बीन द दिस ह्यूज एंड द ब्रॉड लिस्ट वुड हैव बीन द ऑफ द गुड्स, ये गुड्स के लिस्ट हो सकते हैं, जो क्ले टैबलेट्स पर पाए गए हैं वो गुड्स के लिस्ट हो सकते हैं। एंड द ब्रॉट इनटू और डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम द टेम्पल्स ऑफ द उरुक, क्योंकि टेम्पल्स आप जानते हैं कि ये टेम्पल्स नाउ फंक्शंस ए वेरी ब्रॉड वर्क्स, ह्यूज वर्क्स, लॉट्स ऑफ वर्क्स फंक्शंस। तो ये दिस लिस्ट ऑफ द गुड्स है वेयर 5000 फॉर्म में टैबलेट्स में उसको डिपिक्ट किया गया और ये लाया गया था उरुक टेम्पल्स में। ऐसा लगता है, माना जा सकता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए अमॉन्ग्स द पीपुल, अमॉन्ग्स द सिटी ड्वेलर्स, उनके बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये पाया गया, लाया गया होगा। एंड नाउ मोर ओवर द सिटी ऑफ द साउथ, इट्स नाउ देयर वेयर ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग एंड द ग्रोथ ऑफ सिटी। अगर हम यहाँ पे देखें कि शहर में, टाउन्स में और राइटिंग सिस्टम में, दोनों में बहुत ही एक क्लोज इंटीमेसी है। राइटिंग के साथ साथ सिटी के, शहर के साथ साथ राइटिंग की डेवलपमेंट। और ऑलमोस्ट माना जाता है कि 35,000 से 3500 बिफोर क्राइस्ट नाउ सुमेरियन emerged as the cities, very busy city in respect of the trade and commerce और in economic activities। सुमेरिया emerged हुआ economic activities में in respect of that। तो so and now in this way Sumeria now constituted a complexities of the work, complex, and now this complexities of economic activities now forced and pushed for the necessity of the SOM system of the making proper note of the variety of transaction। क्योंकि इकोनॉमी के हब होने की वजह से सुमेरिया रिक्वायर्ड हुआ क्या, नाउ
सुमेरियंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर ए हब होने से एक ह्यूज ट्रांजेक्शंस होने लगे, इकोनॉमिक गिव एंड टेक, परचेज एंड सेल्स, ये ट्रांजेक्शंस होने लगा। इसके बाद आफ्टर दैट दे रिक्वायर्ड फॉर द बुक कीपिंग and required for the accountancy, bookkeepings, and means the records of the transactions they required, because कोई चीज बहुत लॉन्ग समय से याद नहीं रखी जा सकती थी। द ट्रांजेक्शन एंड द लिस्ट ऑफ द गुड्स को बहुत फॉर द लॉन्ग टाइम तो कैसे हो सकता था? दिस रिक्वायर्ड द राइटिंग्स, थ्रू द राइटिंग्स दिस and this record now necessity the maintaining the more durable records। इसलिए ये ट्रांजेक्शंस की वजह से सुमेरिया में रिक्वायरमेंट हुआ कि रिकॉर्ड्स को कंजर्व करना, रिकॉर्ड्स को स्टोर करना। नाउ आई टेक दैट द रिटेन और दिस वुड बी द ओनली दिस नेसेसिटी नाउ पेव द वे फॉर, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि दिस बिकेम द पेव द वे फॉर restoring the records in the form of the writings, कि राइटिंग्स की प्रोसेस को और ज़्यादा पुश करने वाला और मोर एडवांस्ड करने या मोर उसको रैपिड करने वाला मेसोपोटामियन से ट्रांजैक्शन सिस्टम होगा या इकोनॉमिक सिस्टम। मोर ओवर दिस पेव्ड द राइट एंड द सिटी लाइफ ट्रांजैक्शंस occurred in a different times, involve many people, और इससे इतना एक कॉम्प्लेक्सिटीज में हब, इकोनॉमिक हब होने से कि लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, गुड्स, ट्रांजैक्शंस involved in this, and as a therefore it became the very difficult to track of the stocks। इसलिए ये बहुत जरूरी हुआ, डिफिकल्ट हुआ कि कैसे रिकॉर्ड्स को रखा जाए, कैसे, तो ये बहुत नेसेसिटी हो गया वहां के लिए फॉर बिकम and the keep the track of records or exchanges orally, और ऐसा भी possible नहीं था। now it was not possible to keep the all records orally, it was not possible। so now that is why as a temples were the engaged, और आप जानते हैं कि इस extensive economic activities में temples से played the important role and playing and now dealing, and they initiated the use of writing scripts। इसलिए राइटिंग स्क्रिप्ट्स के यूज में टेम्पल्स इनिशिएटेड द रोल, प्लेड द वेरी वाइटल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द राइटिंग्स इन सुमेरियन या मेसोपोटामिया। टेम्पल्स प्लेड बिकॉज द टेम्पल्स वाज कंप्लीटली, ये केवल वर्शिप और फेथ का जगह नहीं था, पिलग्रिम्स प्लेस नहीं था। along with the temples now temples now perform the many of the economic activities। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ साथ ये एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में लास्ट पीरियड्स में क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको कि ये इरिगेशन एक्टिविटीज को भी टेम्पल्स वहाँ पे सेट फोर करते थे और उसे मैनेज करते थे। और जितने भी ट्रेड का ट्रांजेक्शन्स है, एग्रीकल्चर भी मैनेज करना, ट्रांजेक्शन भी ट्रेड्स की मैनेज करना। तो इसलिए फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड ये जस्ट टेम्पल्स now took the initiations for the growth of the writings। Moreover, we shall now see the cuneiform writing, cuneiform script जिसको हम कहते हैं। तो what was the cuneiform, how it was the prepared, कैसे कोई cuneiform से स्क्रिप्ट कैसे तैयार किया जाता था। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल क्ले आप जानते हैं, वेट सॉइल को हम क्ले कहते हैं। तो दिस क्ले वाज टेकन, क्ले टैबलेट्स वेयर यूज फॉर राइटिंग। ज्यादातर वहाँ जो राइटिंग है पेपर्स में नहीं हुए, इट वाज द रिटेन ऑन क्ले टैबलेट्स एंड दिस वाज लिखन एंड द बाय द नीडिंग एंड पैटिंग। इसे क्या किया जाता है, क्ले को लेकर टेकिंग द क्ले और इसको नीडिंग और इसे पैटिंग करके इसे वाइट्स बनाया जाता था, एक शेप दिया जाता था बाय द पैकिंग। क्योंकि क्ले क्या है, ये मेलेबल होता है, काफी इजीली मेलेबल होता है, तो इसे हम एक शेप वाज गिवन वेरी वेल एंड देन विद द शार्प एंड ऑफ द रीड कट। इसमें रीड के माउथ पर उसे शार्प किया जाता था। रीड वाज ए लॉन्ग ग्रास्ड स्टिक्स होते थे, और जो बम्बू जो होता है, तो बम्बू थोड़ा सा दैट इज द
ह्यूज होता है, लेकिन ये रीड एक छड़ी स्टिक्स की तरह होता है, लेकिन शेप इसका एक बम्बू की तरह होता है। तो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे कट किया जाता था, शार्प बनाया जाता था, और उसी उसी के पॉइंट से रीड कट और इसे ओब्लिकली कट किया जाता था, ओब्लिकली oblique cut mark was given and obliquely and then with the sharp a scribe, scribes किसको कहते हैं, those who were writers, writers को हम scribes भी कहते हैं। scribes जो राइटिंग करते हैं, राइटिंग वर्क, कैलीग्राफिक राइटिंग्स जो करते हैं, ब्यूटीफुल राइटिंग्स या वो, तो उसे हम स्क्राइब्स कहते हैं। तो स्क्राइब से नाउ वुड प्रेस वेज शेप यूनिफॉर्म साइन ऑन टू स्मूथ है, जो स्मूथ होता है अभी भी, और ड्राइड नहीं होता है, स्मूथ होता है क्ले, फ्लैट क्ले, तो उस पर वो क्या करता है, प्रेस करता है यूनिफॉर्म स्मूथेन सरफेस व्हाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट, अभी अभी वो मॉइस्ट होता है, स्मूथ होता है, मॉइस्ट होता है, तो उस पर वो प्रेस करता है। एंड देयर आफ्टर टैबलेट्स वेयर ड्राइड इन सन, और उसके बाद इस टैबलेट्स पर उस पर एक सिंबल बनता है, साइन बनता था, और उसे ले जाके इंटैक्ट विदर द सन में ड्राइड किया या ओवन में उसको हार्डन किया जाता, ओवन में बाय फायर, ओवन में उसे जलाया जाता था, बर्न किया जाता, दैट बिकेम द वेरी हार्डर हार्डर्स एंड मोर ओवर this process gave the permanent shape to the permanent shape uh, to the, ये इसने क्या किया कि परमानेंट शेप वाज गिवन एंड द स्क्रिप्ट्स सुमेरियंस वेयर नोन एज द, और इसी स्क्रिप्ट्स को परमानेंट शेप टू द डॉक्यूमेंट्स, और यही एक परमानेंट डॉक्यूमेंटेड शेप हो जाता है, एक डॉक्यूमेंट बन जाता, जो भी वट एवर द प्रेस्ड ऑन दैट and the mark on that during the its moist conditions, तो ये से और इसके बाद ड्राइड, तो दैट परमानेंट हार्डेंस हो जाता था, बड़ी स्ट्रॉन्ग, और ये परमानेंट सिंबल या साइन या राइटिंग्स हो। तो दिस प्रोसेस वाज एडॉप्टेड, और द स्क्रिप्ट ऑफ सुमेरियंस वेर नोन एज द यूनिफॉर्म, तो सुमेरियंस लोग इसको यूज किया, तो इसे यूनिफॉर्म्स कहते हैं, और क्योंकि ये टर्म से डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और ये दो टर्म से बना है, दैट इज द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट फ्रॉम द क्यूनियस, क्यूनियस एंड दैट द मीनिंग द वेस एंड द फॉर्म मीनिंग द शेप, द दिस स्क्रिप्ट इवॉल्व फ्रॉम द पिक्चर, और ये स्क्रिप्ट क्या है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, सिंबल, सिंबॉलिक एंड पिक्टोग्राफिक जिसको हम कह सकते हैं, स्क्रिप्ट्स वेयर एंड द अर्लीस्ट टैबलेट्स मेसोपोटामिया वेयर नेचर ऑफ द टेम्पल अकाउंट्स, तो अर्लीस्ट वेयर जो मेसोपोटामिया में अर्लीस्ट जो टैबलेट्स मिले हैं, इवॉल्व फ्रॉम द पिक्चर्स, ये पिक्चर से इवॉल्व हुए, उस पर पिक्चर सिम्बलाइज किया जाता था, और उसी से ये स्क्रिप्ट डेवलप हुआ, पहले पिक्टोग्राफिक्स था, उसके बाद ग्रेजुअली ये वर्ड्स उस पर डेवलप किए गए। And further, the earliest tablets in Mesopotamia were the aware of the nature of temple accounts, उसमें जो मिला है earliest जो फाउंड किया गया है, तो temples के अकाउंट, राशन, mentioning of the ration list, some of them contain the crude picture and certain objects such as fish, sheep and the now ears of the barley. With the passage of the time, pictography grams became the now simpler and the implied by the simpler uniform. ये धीरे धीरे simpler होता गया, uniform हुआ, और by the 3200 before Christ, this pictography writings implied by the temples at the several places in Sumeria. वन सरफेस ड्राइड, जैसे कि सरफेस को मैंने पहले भी कहा आपको, एक बार जब वो ड्राइड कर दिया जाता था, दिस बिकेम द हार्डन, उसके बाद कुछ नथिंग कुड बी द रिटेन अपॉन दैट, नथिंग कुड बी द मार्क ऑन दैट, उस पर कुछ भी मार्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हार्डन होने के बाद नथिंग कुड बी द मार्क ऑन दैट, दस द ट्रांजेक्शन हाउएवर, तो इसके बाद वंस द सरफेस ड्राइड, साइन कुड नॉट बी द प्रेस्ड ऑन, द ईच ट्रांजेक्शन हाउएवर माइनर और द greater separated, done on the separate, her each transaction one
वन वेज शेप पर एक बार ट्रांजेक्शन होता था, एक फर्स्ट ट्रांजेक्शन वन जैसे पेज हमारा होता है, फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, तो ईच मैटर्स और द ईच ट्रांजेक्शन वाज डिपिक्टेड एंड द मार्क ऑन वन टैबलेट्स। फिर उसके बाद आफ्टर दैट सेकेंड टैबलेट्स, थर्ड टैबलेट्स, other transaction fourth tablets, like that it was the conserved or arranged. First and second. Next thing is the Mesopotamian, these tablets contributed significant the reconstruction of history. अगर वहाँ के हम इतिहास को जानना चाहते हैं, हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज होते हैं, तो ये प्लेट्स हमें बहुत एविडेंस देते हैं। हमें हिस्ट्री इज reconstructed on the basis of the evidence। तो इसमें जो राइटिंग्स थे, जो भी हमें मिला उस पर राइटिंग, जो भी प्रिंटेड मिला, उसके ऑन दैट बेसिस हम वहाँ की इतिहास, वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की कल्चर, वहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स, वहाँ की एग्रीकल्चर, उसके बारे में वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। तो दिस बिकेम, टैबलेट्स बिकेम वन ऑफ द, जैसे हमारे हिस्ट्री के सोर्सेस बहुत होते हैं ना, जैसे लिटरेरी सोर्सेस है, जैसे अपने रिमेन्स, कोई रिमेन्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, और बिल्डिंग्स मटेरियल्स हैं, क्वाइंस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं कि हिस्ट्री हम लेके उससे इतिहास लिख सकते हैं। तो ये भी एक हिस्ट्री राइटिंग्स के लिए एक मीन्स बना, एक एविडेंस बना, एक फैक्टर्स बना जिससे कि हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और ब्रोंज सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री लिखा गया मेसोपोटामियन की, तो उसमें इस फैक्ट्स ने बहुत ज़्यादा हिस्ट्रियंस को सपोर्ट किया, वहाँ की टैबलेट्स। फर्दर हम देखें कि अराउंड द 2600 BC, क्यूनिफॉर्म लेटर्स वाज वाइडली यूज्ड। और इसे कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता जाता? पहले बाय द टाइमिंग यूज ऑफ ओनली कीपिंग द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए लॉन्ग टाइम तक हम रिकॉर्ड को रख सकते हैं, ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड्स हों। सेकेंड, द ट्रांसफर्स ऑफ द लैंड, लैंड की जो लीगल वैलिडिटी होती थी, आज जो हम पेपर पे जो करते हैं, स्टैम्प पेपर या जो भी है लैंड्स के लिए ट्रांजेक्शन या लैंड्स की ये ट्रांसफर करना, ये दैट वाज द डन ऑन द टैबलेट्स। तो इसके लिए बहुत यूजफुल होता है मेसोपोटामियन। एंड मोर ओवर नरेटिंग द डीड्स ऑफ द किंग, किंग की अचीवमेंट्स को भी टैबलेट्स पे लिखा जाता था। विच बैटल किंग से, हाउ मेनी बैटल्स फाउट, in which battle he got the defeat and he got the victory, and which temples he now got constructed, which incident ceremonies he now organized। तो ये जितने भी किंग्स की अचीवमेंट्स होता था, उसका जो भी है वट एवर द किंग्स लाइफ्स का, वो दोज वेयर रिटेन ऑन द टैबलेट्स, those were found in the forms of tablets, kings announcing the changes of the changes a kings had to make the customary laws, जो कानून था, लॉस था, वो किंग से थ्रू द टैबलेट्स वो इशू करता था। जो रॉयल एडिक्ट्स होते हैं या रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, जैसे आज तो पेपर से जाता है ऑर्डर्स, गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स, तो उस वक्त जो किंग्स के जो ऑर्डर्स, जैसे आप देखते हो कि रॉयल ऑर्डर्स जो भी अशोक हमारे देश में, इन आवर कंट्री अगर देखा जाए तो अशोक द ग्रेट, जो भी वो अपने जो भी ऑर्डर्स रॉयल, तो उसके एडिक्ट्स होते थे, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, और उस पर कार्व आउट किया जाता था, कार्विंग आउट, और उसके ऑर्डर्स उसमें पूरे एम्पायर में स्प्रेड किया जाता एवरीवेयर। और उसमें हंड्रेड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन और पिलर और रॉक एडिक्ट्स से और माइनर एडिक्ट्स, बिग एडिक्ट्स हमें मिलते हैं। तो उसी तरह से द किंग जो मेसोपोटामियंस थे, वो अपनी ऑर्डर्स को ऑन द बाय थ्रू द टैबलेट्स दे यूज्ड टू द ब्रिंग टू द देयर पीपल, गेट नो देयर पीपल, सो अपनी ऑर्डर्स को वहां से इशू करते हैं। दिस इज द एंड मोर ओवर लॉज ऑफ द लैंड एंड फॉर मेकिंग द नाउ डिक्शनरी के लिए हम मोटी मोटी डिक्शनरी वॉल्यूमिनस से डिक्शनरी देखते हैं, तो ये डिक्शनरी का भी काम करते थे। एज ए डिक्शनरी वाज जस्ट कंपोज्ड थ्रू द जस्ट टैबलेट्स के थ्रू डिक्शनरी प्रिपेयर किया जाता।
तो नाउ इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था राइटिंग्स का। एंड मोर ओवर आफ्टर द 24,100 बीसी में आप देखते हैं कि अकाडियन लैंग्वेज रिप्लेस द सुमेरियन। पहले आप पढ़े हैं कि अकाडियों ने सुमेरियंस लैंग्वेज को रिप्लेस किया। एंड द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ द मेसोपोटामिया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सुमेरियंस लैंग्वेज वहां यूज हुआ मेसोपोटामिया में। उसके बाद अकाडियंस ने उनको रिप्लेस किया। फिर उसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था जैसे अरामैक लैंग्वेज, अरामैक डोमिनेंट रहा, जो हिब्रू से, हिब्रू लैंग्वेज होता है उससे ये थोड़ा सा दैट इज द वेरी क्लोजली रिजेंबल्स होता है। तो दिस वाज द डन। और ये लैंग्वेज यूनिफॉर्म राइटिंग से अकाडियन लैंग्वेज कंटिन्यूड फॉर मोर देन 2000 ईयर्स टिल द फर्स्ट सेंचुरी एडी तक वो कंटिन्यू रहा। दैट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम अकाडियंस लैंग्वेज परफॉर्म। अब हम देखेंगे कि नाउ व्हाट इज द system of the writing. So the writing system was very difficult, and not Mesopotamians much importance attached to the work of the scribe. Scribes का बहुत values था क्योंकि writers now had the much importance and significance in the society, क्योंकि वो कंपोज कर सकता था, he could now prepare the tablets, and scribe had to learn, क्यों कि because scribe had to be the very skilled and very learned man to know about the hundreds of the sign, what those sign are representing. Every sign now represented the certain meaning. तो दिस मस्ट बी नोन टू द स्क्राइबर्स, स्क्राइबर को ये जानना बहुत जरूरी था। अंडरस्टैंड? तो ये स्क्राइबर्स से वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट एंड साउंड, उसके साथ साथ साउंड दैट यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड नॉट ए सिंगल कॉन्सोनेंट। वहां का सिंगल कॉन्सोनेंट नहीं था, वहां का सिलेबल्स चलता था, थ्री, और वहाँ हमारे यहाँ जैसे है कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल है वो सिंगल वर्ड्स के हैं, लेकिन वहाँ की जो वर्ड्स थे वो बिल्कुल सिलेबल पर थे, जस्ट थ्री और थ्री टू फोर इस तरह से सिलेबल वर्ड से वहाँ बनाया जाता था स्क्रिप्ट से। एंड मोर ओवर इट रिक्वायर्ड मच ए प्रोफिशिएंसी एंड द स्क्राइब हैड टू बी द एबल टू हैंडल, और उसमें स्क्राइबर्स को एफिशिएंट होना होता था, और एंड द राइटिंग बिफोर द ड्रैग। मोर ओवर अब ये हम देखेंगे, नेक्स्ट फोकस है हमारा कि राइटिंग का यूज कहाँ होता था। दिस इज द वेरी कॉमन टू वेव। और एंशियंट मेसोपोटामियन ट्रेडिशंस में अगर देखा जाए तो किंग फर्स्ट इनिशिएटेड द डेवलप द ट्रेड एंड द राइटिंग। राजाओं ने, वहां के जो किंग्स थे, दे हैड टेकन द फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टार्टेड द taking the initiation of the writings and the city writing and the trade also. And Sumerians say epic poem associated with organization of the first trade of Sumer with the Enmerkar. Enmerkar was the a prominent king of the Uruk. Uruk का वो राजा था, और उसकी ट्रेड सिस्टम बहुत डेवलप उसने किया, और उसके साथ साथ राइटिंग सिस्टम माना जाता है कि ओरिजिनेट वहीं से हुआ। राइटिंग जैसे हम टैबलेट्स राइटिंग है, दैट बिगेन फ्रॉम देयर द एंड द नाउ ही वांटेड। उसके साथ एक छोटी सी स्टोरी है कि ही वांटेड टू नाउ मेक his state or his wanted to make his state Uruk very excellent, and moreover he wanted to decorate his temples by the precious stones. तो precious stones में lapis lazuli precious stone होता है। अंडरस्टैंड? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आप जब पढ़ेंगे तो ये अफगानिस्तान में मिलता था। वेरी ब्यूटीफुल स्टोन्स जो जिसको अगर हम स्टडीड कर दिया जाए टेम्पल्स वगैरह में तो बहुत ब्यूटीफुल साइन। तो ये वो भी ही वांटेड, ही वाज इन अर्जेंट नीड फॉर द डेकोरेशन ऑफ द टेम्पल्स। तो वन से नाउ एनमर्कर वांटेड प्रीशियस मेटल फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल to in order to accomplish his job and his work. Now he just sent a messenger to Arata, the kings and rulers of the Arata. Arata के rulers के यहाँ उसने एक messenger, the messengers now, so long messengers now made his journey
very long journey he took, and very mountains, rivers he crossed for going to the Arata. Because of so long troublesome journey, messenger grew so weary of mouth. He became so tired of that, understand that journey. He could not speak the word. That's why, as he back thereafter, Enmarker formed a clay tablet in his hand. उसने एक clay tablet form किया. यही origin हुआ tablet का. Understand from there. तो उसने clay tablet वहाँ पे form किया, and now the messengers now wrote and now put he wrote down on that. So now uh, since then, this is the suppose that a tablet writing system began from there. इसका origin माना जाता है कि that is the and grew so weary. Enmerker form a clay, and now it is should be kept in mind that there had been no writing down of the words on the clay in those days. तो clay पर writing नहीं किया जाता था those days. ऐसा है तो तब फर्स्ट मैंने कहा कि वो बिगिनिंग माना जाता है क्ले राइटिंग्स का एंड दस इट बिकेम्स द एम्पली क्लियर अर्लीस्ट एक्टिविटीज ऑफ द डिस्पैचिंग मैसेज डूइंग ट्रेड एंड परफॉर्मेंस ओरली तो ये इससे स्पष्ट है कि जो भी परफॉर्मेंस होता था या ट्रांजेक्शन्स होते थे या डीलिंग्स होते थे या मैसेज कन्वेइंग किए जाते थे कन्वेड तो ये कैसे होता था ओरली not by the writing in the clay. Clay writings firstly एनमर्कर्स ने शुरुआत की थी उसके टाइम में क्ले राइटिंग्स रिमेंबर अंडरस्टैंड और इसके पहले क्या था ओरली एवरीथिंग्स वाज केप्ट और कम्युनिकेटेड ओरली ओनली not the in the written form and the in the top tablets. The moreover this happened and earliest activities thus it became amply clear message doing trade in the very some clay token various shapes like the space clay में भी जैसे है कि उसका डिफरेंट काइंड का शेप होता था कुछ शेप पिरामिडिकल होते थे इस क्ले के कुछ शेप स्फेरिकल्स होता था कुछ शेप सर्कुलर होता था सेमी सर्कुलर होता था डिफरेंट काइंड्स ऑफ द शेप्स वेयर गिवन इसका तरह तरह का शेप उसको दिया जाता था एक तरह का नहीं था वन टाइम ऑफ द वन काइंड ऑफ शेप नहीं था पिरामिडिकल होता था कॉनिकल शेप्स होते थे एंड द हिस्टोरियन सजेस्ट सेवरल क्ले बॉल्स ऑफ द वेरियस शेप्स वुड हैव बीन द यूज्ड टू कीप द रिकॉर्ड नंबर ऑफ द गोड्स उसमें क्ले बॉल्स भी बहुत मिलता है कि बॉल की तरह भी क्ले और जिस पर कि नंबर ऑफ गोड्स एंड शीप्स अब जानते हैं कि स्टेपी में स्टेपीज में number of large number of the goats and sheep were taken away for the grazing and the steppe तो उनकी नंबर को रखना उनके काउंटिंग करना ये बॉल लाइक के शेप में की क्ले पर उसको नोट उनके नंबरिंग्स को नोट किया जाता था एंड फर्दर रिमेन्स ऑफ द रिटेन टैबलेट्स टेम्पल्स inscribed the oracle bones in the pits of Anga टेस्टिफाइड प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी राइटिंग इन ऑर्डर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इसके बाद ऐसे मिलता है कि बहुत से इंफॉर्मेशन जो है वो हमें टेम्पल्स में रखे गए हैं बोन्स पर भी इंस्क्राइब्ड करके रखा गया है तो वी फाइंड ए लॉट्स ऑफ अब हम देखते हैं कि लिटरेसी की क्या स्थिति थी द लिटरेसी वॉज वेरी फ्यू क्यों कि इट वॉज द वेरी मच डिफिकल्ट टास्क and the Herculean task to learn the writing को सीखना या उसके सिंबल्स को याद करना रखना ये बहुत डिफिकल्ट है तो इसलिए वहाँ की जो राइटिंग्स था वेरी फ्यू लिटरेसी था वहाँ पे बहुत कम लोग क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था इट वाज नॉट पॉसिबल बाय द कॉमन मैन और कंटेम्पोररी सिस्टम रिफ्लेक्टेड मोड ऑफ स्पीकिंग राइटिंग वाज जस्ट लाइक ए पिक्चर और मैंने पहले भी कहा कि राइटिंग वहाँ क्या थी पिक्टोग्राफिक थी और इस पिक्चर हैड इट्स ओन मीनिंग एंड वर्ड्स एंड साउंड सिलेबल्स वेयर इम्प्रेस्ड ऑन द वेट सरफेस ऑफ द क्ले टैबलेट्स दिस राइटिंग वाज कॉल्ड द क्यूनिफॉर्म्स और ऐसे राइटिंग्स को क्यूनिफॉर्म कहते थे अब हमें देखेंगे कि ये राइटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग। तो पहला अगर देखा जाए कि दीज डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग्स मेड द पॉसिबल टू कीप द डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने में इसने ये पॉसिबल हुआ। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स को इन क्ले राइटिंग्स के थ्रू मेंटेन किया गया। एंड इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशंस हैंडल द कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स could participate। एंड इसके साथ डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग ट्रांजेक्शन could be the stagger over the time। इसके साथ साथ कैलेंडर्स एंड टाइम टाइम रिकॉर्डिंग कैलेंडर इसको प्रिजर्व किया जाने लगा। मोर ओवर दिस एल्सो आउट गोइंग इनकमिंग गुड्स स्टॉक एंड स्टोरेज का जो पर्टिकुलर्स था उसको मेंटेन किया गया। मोर ओवर एंड द राइटिंग्स लिटरेचर high order came in the growth of Mesopotamia since literacy now, and this literacy took the earlier of Mesopotamia able the develop of mathematics। इसी राइटिंग के डेवलप होने से वहाँ मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, जिसने कि मेसोपोटामिया ने बहुत सी चीज़ें मैथमेटिक्स के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हैड द प्रोवाइडेड। लास्ट द इनहांस द पावर ऑफ रूलिंग अथॉरिटी, किंग कमांड द ऑर्डर्स बाय द सेंडिंग हिज ऑर्डर्स बाय द राइटिंग फॉर्म। तो किंग से के जो ऑर्डर्स थे वो राइटिंग फॉर्म में और इफेक्टिव राइटिंग फॉर्म में जाते थे अप टू द कॉमन मैन एंड द सब्जेक्ट्स। एंड मोर ओवर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग फिजिबल सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन, ये पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन को और फिजिबल किया, आसान किया। डिस्टेंस लैंड में जो रहते थे उनके साथ कम्युनिकेशन सेटअप किया गया। एंड इन ओपिनियन ऑफ हिस्टोरियन अकाडियंस यूनिफॉर्म बिकेम द लैंग्वेज ऑफ डिप्लोमेटिक। इजिप्ट एंड वेस्ट एशियन के साथ जो वहाँ का जो एम्बेसडर्स जो होते थे या जो डिप्लोमेटिक जो कम्युनिकेशंस होते थे वो अकाडियंस लैंग्वेज। तो सुमेरिया दिस civilization became the very dominant and played the very important role in the field of the development of writings। तो writings हमने देखा, you can understand well कि how the writing play, how this developed gradually and played the important role in the preservation of the record and the transaction temples trade and for the importance for the kings। Students, today that is all. Next we shall having our other topics. Thank you very much.